Regards from Arya Institute of English Medium. Now we are going to see about a very important chapters, that is a part of a chemistry. As I had already told you, it has been divided into a 4 part. One which is relevant to the chemistry. ये जो part जो है, this comes in a part of a chemistry. Then second part is having a relevant to the biology, and then we are going to see about a physics, and last part of the science is relevant to the environmental chemistry. All the parts is having is a very important role. So now particularly in chapter number 1 of this chapter, these are totally based on a chapter which you have already learned in standard 9th. तो एक बेसिक रूल आपको बता देता हूँ, दैट इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच यू हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 9, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, only it is going to convert it into one form to the another form. Now in a day-to-day life we have seen a plenty of the example which sometimes create a how these things is taking place. मिल्क अगर मैं ये समर सीजन में अगर मैं ये खुले में छोड़ देता हूँ, what is going to be happen when it comes to a room temperature during a summer, gradually it is going to be get converted into a थोड़ा इसके जो टेस्ट है उसके अंदर चेंज आ जाएगा. As the milk is having a pH, that is a potance, is a basic in nature. When in particularly summer season some microorganisms get attached. मिल्क के अंदर होता है लैक्टोस, एंड लैक्टोस जो है उसका बैक्टीरिया जो है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू ए लैक्टिक एसिड. जब ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो ग्रेजुअली पीएच मीन्स पोटांस इज गोइंग टू बी चेंज एंड इट्स गोइंग टू बिकम बेसिक टू ए एसिडिक एंड सोर इन टेस्ट हो जाएगा. इट विल गेट कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ ए कर्ड. सो ये खराब होने के चांसेस होते हैं. फर्स्ट पार्ट. देन आयरन, तवा है, पान है, नील है. When you will put it in a exposure of the air or a humid atmosphere, and particularly एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा दूँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नवरात्रि का पहले आपके घर के अंदर पेंट करवा दें. बाय नवरात्रि के टाइम के पहले पेंट करवा दें, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम अप टू ए दिवाली जितना भी एटमोसफियर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. मीन्स ए वेपर वाटर वेपर प्रपोर्शन इज़ अ वेरी high. So to prevent a corrosion, we are applying a paint in this particular season. If it has been exposed, then gradually you are able to see a corrosion. That process is going to be takes place. Same things in a fruit like a grapes or any citrus fruit. If you will put for a longer duration, it is going to get a fermented. Fermented मतलब आथा आ जाना, शुद्ध गुजराती में बोले या लोकल लैंग्वेज में आप बोलते हैं ना कि ख़राब हो गया है. इट इज़ गोइंग टू गिव ए वेरी स्टिंकी डर्टी स्मेल ड्यूरिंग दिस. व्हेन वी आर योर मदर इज कुकिंग ए फूड, इट इज़ टोटली गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. जैसे राइस ले लिया, कुकर के अंदर डाल के प्रेशर अप्लाई करते ही उसके शेप और उसके कलर्स उसके अंदर बदलाव आता है. फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है. वी रेस्पायर का 2 प्रोसेस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो एक एक्सहेल करता है, एक इनहेल करता है. ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन हैज़ बीन यूटिलाइज एंड इनहेल करेंगे तब ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा. एक्सहेल करेंगे देन इट इज़ कंटेनिंग मोर प्रोपोर्शन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड. द ऑक्सीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन प्रोसेस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज कॉल्ड एज ना combustion. So the food which we have ate, then it is because of the presence of the oxygen, it gets combusted and it gets converted into a proper form where our body is able to utilize that in a proper way. So ये जो सारी reactions जो है वो हम understand कर पाते हैं with the help of a chemical reaction और equation लिख के उसको understand कर सकते हैं.
Now, in all the above situation, nature and identify the initial substance somewhat change. So we have already learned about the physical and chemical change. Physical change के अंदर क्या होगा? There are three states. One is a solid, another one is a liquid, and last stage is a gas. ये तीन इसके मेन स्टेट होते हैं. केमिकल चेंज के अंदर उसकी पूरी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आ जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूअर कंपाउंड. whenever a chemical change occurs, we can see that a chemical reaction has taken place. तो chemical reaction कभी take place होती है? उसके chemical या composition के अंदर बदलाव आना. So perhaps be wondering as what actually meant by a chemical reaction. तो chemical reaction क्या होती है, क्यों take place होती है, that we are going to see in these particular things. Here in this particular chapter, plenty of the activity has been given which might be have learned in standard 6, 7 और 8. तो वो आपको थोड़ा रिकलेक्ट करना पड़ेगा up to the 9th whatever you have learned, जिसकी एक समरी के जैसा आ जाएगा. Here one activity has been given. Here एक मैग्नीशियम का रिबन ले लेते हैं विथ होल्ड इट विद पेयर ऑफ द टोन्स, एंड मैग्नीशियम रिबन को अगर हम कंबशन करते हैं इट इज गोइंग टू गिव ए स्पार्क एंड ए डेजलिंग साउंड, एंड इट इज ग्रेजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद हीटिंग करते ही हमको एक वाइट कलर का सब्सटेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड ना मैग्नीशियम ऑक्साइड. रिबन किसका था? मैग्नीशियम का. व्हेन आई हैड हीटेड इट इज गोइंग टू गिव ए वाइट कलर पाउडर. मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, आप शायद यही चीज़ ड्यूरिंग ए दिवाली यू हैव सीन व्हेन यू आर दैट ए तारामंडल फुलझड़ी आप जब जलाते हो, then it is going to give a dazzling sound and it is going to give you a white color or sometimes a black color that powder has been there. That is something like same phenomena is going to take place when combustion of the magnesium ribbon is taking place. So let us see burning of the magnesium ribbon in air, collection of magnesium oxide in a watch glass. आप white color का powder इसके अंदर से मिलेगा. ये मैग्नीशियम के साथ प्रेजेंस ऑफ द एयर एटमॉस्फेयर से कंबाइन हुआ एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ पाउडरी फॉर्म एंड इट इज अ वाइट कलर. नाउ whole property gets changed during these particular things. Now next, you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and change into a white powder. This powder is a magnesium oxide होता है. It is formed due to the reaction between a magnesium and oxygen present in the air. तो इसकी एक रिएक्शन बन जाएगी. Now take a few zinc granules in a conical flask. इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके आप जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, उसके अंदर कोई भी एसिड डाल दीजिए. यहाँ पे लिया गया है दैट इज अ dilute sulfuric acid is a conical flask. After that ये ग्लास ट्यूब से इसको पैक किया गया है एंड कॉक लगाया गया है. यहाँ से गैस विल कम आउटसाइड एंड इफ यू विल सी, इसको टेस्ट करेंगे कलेक्ट करके, देन इट इज़ अ बप करके साउंड के साथ ये इमीडिएटली फायर कैच करता है. इट इज़ ए वेरी डेंजरस. यू हैव टू परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए योर दैट साइंस टीचर्स के प्रेजेंस में ही आप ये कर सकते हो. From the above three activities, we can see that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place. क्या क्या बदलाव आते हैं? एक तो चेंज इन स्टेट हमने पढ़ लिया, दैट इज अ सॉलिड टू लिक्विड और गैस. चेंज इन अ कलर, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई what change has taken place in that particular activity. Then evolution of the gas, change in a temperature, तापमान में बदलाव आना. That is 4 changes which is taking place during this. As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of the chemical reaction taking place around us.
we'll study about the various type of a chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. अब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे. हाउ this reaction is taking place. We have seen one simple reaction relevant to the magnesium. Now activity 1.1 में हमने देखा कि इसके अंदर मैग्नीशियम था जिसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ. तो जो चीज़ रिएक्शन कर रही है उसको क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट. के कांटेक्ट में आने से या टेम्परेचर प्रोवाइड करने से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर कुछ नया कन्वर्जन होता है देन इट इज कॉल्ड एन प्रोडक्ट. नियर थिंग्स विच फॉर्म्स इज कॉल्ड एन प्रोडक्ट. सो ये जो लिखा है मैंने वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है दैट इज ए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. सो इट इज गोइंग टू गिव ए मैग्नीशियम ऑक्साइड. Substance that undergo a chemical change in this reaction, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट. एंड द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट. ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन द. तो ये दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? एरो. बिकॉज दिस इज ग्रेजुअली गोइंग टू डिक्रीज एंड दिस इज गोइंग टू बी गेट इंक्रीज. ये दोनों का एडिशन हुआ तो बीच में साइन क्या लगाएंगे? प्लस. ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही प्रोडक्ट मिले. कई बार वी आर गोइंग टू गेट ए मोर देन 2 प्रोडक्ट्स व्हेन कंबाइंस वी गेट ए 2 प्रोडक्ट्स और समटाइम मोर देन 3 ऑल्सो. दैट विल सी इट लेटर ऑन. ये जो प्लस साइड है दैट इज ऑन RHS और ये दोनों के बीच में रिएक्शन होने की वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिला हुआ है. नाउ इसको ही हम केमिकल इक्वेशन को जब लिखना चाहेंगे. So, is there any shorter way? Yes, we have learned one chapters where we have seen about a modern periodic table in standard 9. तो उसके अंदर symbolic form में सबको write किया गया था. So, we have to write it down in that way. So, it will make my statement very easy. तो chemical equation represent in a chemical reaction. Formula of the magnesium क्या होगा? That is a M. First letter should be always capital. Second will be a small. When combines in presence of oxygen O2, it is going to form MgO. Now count and compare the number of the atoms. तो मैग्नीशियम का तो एक एटम है लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? एक. सो दिस इज नॉट ए बैलेंस रिएक्शन. सो ये जो है इसको बोला जाएगा स्केलेटन रिएक्शन. क्या बोलेंगे इसको हम? स्केलेटल. नाउ आई हैव टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर थिंग्स. तो जितना प्रोडक्ट है उतना रिएक्टेंट होना चाहिए. सो आई हैव टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो बैलेंसिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स आई हैव टू राइट इट डाउन इन सच अ फॉर्म Mg प्लस O2. इसका स्टेट हम लिखेंगे दैट इज ए गैसियस. ये सॉलिड फॉर्म में था. इसको प्रोवाइड किया. क्या प्रोवाइड किया आपने? हीट किया था. तो हीट का सिंबल लगाएंगे दैट इज विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल. दैट इज गोइंग टू गिव यू Mg एंड O. नाउ ये जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है. यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 है, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा. अगर ऑक्सीजन के 2 एटम यूटिलाइज हो गए लेकिन मैग्नीशियम का हमने कितना लिया था? 1. सो आई हैव टू बैलेंस दिस मैग्नीशियम ऑल्सो. सो आई विल राइट 2 ओवर हियर. सो दिस इज माई बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा. सेम फेनोमेना वी हैव लर्न फॉर ए ZnSO4 जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. During that process, it is going to form a zinc sulfate and hydrogen it is going to be formed. तो 2 प्रोडक्ट मुझे मिल रही है. So here, if I write in a chemical way, formula that we are mentioning is Zn. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4. प्रोडक्ट जिंक सल्फेट तो ZnSO4 एंड हाइड्रोजन. नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑल द रिएक्शंस आर इन अ बैलेंस फॉर्म. रिएक्टेंट जितने भी है उतना प्रोडक्ट है. सो देर इज नो नीड टू डू एनी बैलेंसिंग. सो जस्ट आई विल राइट द स्टेट. दिस इज ए सॉलिड, दिस इज ए एक्वियस, दिस इज ए एक्वियस
but this product which I am going to get, state is a gaseous. गैसियस होने की वजह से ये क्या करेगा, हम एरो मार के बता देंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है. सो द प्रोडक्ट विच यू आर गेटिंग इन अ गैसियस स्टेट यू हैव टू शो एरो इन अ अपवर्ड. अगर प्रेसिपिटेशन क्रिएट होते हैं देन वी हैव टू शो द एरो विच इज समथिंग लाइक दिस विच यू विल लर्न इन नेक्स्ट पार्ट. हियर बैलेंसिंग कैसे करना उसके बारे में बताया. सो एज द इक्वेशन of the element in the same on both the side of the arrow is a balance of the chemical equation. अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ that is a Fe plus H2O तो बनाएगा that is a Fe3O4. This is the formula of a corroded iron. जंग लगा हुआ लोखंड साथ में लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस H2. नाउ यहाँ पे मैं देखता हूँ तो Fe यहाँ पे एक है लेकिन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन के आइटम 4 है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. तो जितने रिएक्टेंट मैंने डाले हैं या यूटिलाइज हुए हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर है. सो आई हैव टू बैलेंस LHS एंड RHS. हाउ आई हैव टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर थिंग्स, लेट अस सी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. नाउ स्टेप 1 में क्या करूँगा, दैट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट बॉक्स बना दूंगा एलिमेंट के थ्रू. तो ये होगा Fe का एक एटम है तो नंबर ऑफ द एटम्स इन द रिएक्शन इज 1. हाइड्रोजन कितने लिए है तो 2. ऑक्सीजन का कितना है तो 1. अब ये बने कितने हैं तो ऑक्सीजन का कन्वर्जन हुआ है 3 के अंदर, ये 2 के अंदर है. हाइड्रोजन रिमेन सेम बट ऑक्सीजन इज 4. O4 लिखा है ना तो वी हैव टू राइट डाउन 4O हियर. स्टेप 3 के अंदर मुझे इसको बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम. इट मे बी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट. इफ द कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम यूजिंग दियर criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 on the left hand side. So balance the oxygen atom करूँगा तो initial is a 1 in H2O, इन प्रोडक्ट में 4 in Fe3O4. तो ये बैलेंस करने के लिए मुझे पहले तो पानी के आगे 4 लगा दूंगा तभी ऑक्सीजन 4 हो पाएंगे ना. So I'll make 4 over here. So water will get balance, oxygen will get balance. So here I have to write down 4. So ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया. Now 4 2 जा 8. हाइड्रोजन बढ़ गया अभी. So यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस हो रहे थे 2. तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं आगे क्या लगाऊंगा, दैट इज 4. अब Fe कितने थे 3. Fe3 था ना. So what I have to write down 3 over here. So this whole reaction gets balanced. So for hydrogen atoms and still not balanced, pick any of these elements to proceed further, balance the hydrogen atom and partly balance the equation. So initial 8 in 4 of H2, so 2 in H2. So to balance 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा. So इक्वेशन के अंदर मैंने आगे 4 आपको मेंशन करके बता दिए. ये 4 बने तो हाइड्रोजन भी 4 प्रोड्यूस होगा. अब बैलेंस करना क्या बाकी है, Fe. तो Fe को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, दैट Fe के अंदर चेंज आया तो आई हैव टू राइट डाउन 3. सबका LCM ले रहे हैं यहाँ पे. आप सिंपल मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, नथिंग एल्स. सो 3 इज ओवर हियर. सो 3 Fe, 4 of H2O going to give you Fe3O4 plus 4 of H2. This is your balance equation. Now स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करूँगा, दैट 3 of Fe प्लस 4 of H2O, Fe3O4 प्लस 4H2. तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 ऑफ द हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 3 Fe 3 Fe. तो जितना रिएक्टेंट है इतना ही मेरा प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट. सो नंबर ऑफ द atoms of the element on both the side of the equation 1.9 are equal and reaction is now balanced. This method of the balancing chemical equation is called as a
hit and trial method, as we make a trial to balance the equation by using a smallest whole number. तो इसको छोटे ऐसे नंबर के साथ बैलेंस करेंगे कि जिससे प्रोडक्ट के अंदर जितने एलिमेंट है उतने ही रिएक्टेंट के अंदर हो जाएंगे. नाउ लास्ट स्टेप दैट वी हैव टू राइट डाउन द सिंबल. अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में जब भी मैं लिखूंगा तो वी हैव टू केयरफुली एग्जामिन द अबोव इक्वेशन. Fe का स्टेट क्या होता है? दैट इज अ मेटल, तो स्टेट विल बी ए सॉलिड. अब जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हुए हैं दे आर ह्यूमिडिटी, सो इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ गैसियस. अब जो कोरोजन जो होता है, जंग होता है Fe3O4, इट इज़ इन अ सॉलिड स्टेट. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट इज़ लिबरेटिंग अ हाइड्रोजन गैस. So here I will write G. So I will write the state of this called as a balance final reaction. So ये आपको 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट करना है. आप इसके लिए मैक्सिमम 7 स्टेप तक जा सकते हैं एंड यू आर एबल टू गेट द फाइनल. नाउ symbol G is used with the H2O to indicate that it is in a reaction. Water is in the form of steam, बाफ के फॉर्म में है. Now usually physical state are not included in a chemical reaction unless it is necessary to specify them. Sometimes reaction condition such as temperature है, pressure है, catalyst है, ये जब यूज़ होते हैं तो उसको लिखा जाता है, जो एरो हमने बताया उसके पे ये लिखेंगे. तो ये एरो के ऊपर हम रिएक्शन के अंदर जो कंडीशन यूज़ की गई है, तो 3 कंडीशन मैंने बताई आपको. One is temperature, second is a pressure, and third is a catalyst. तो ये 3 चीज़ें मुझे बतानी है. तो ये मैं कहाँ पे लिखूँगा? एरो के ऊपर. कार्बन मोनोक्साइड गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और मिथेनॉल बनाता है. तो उसके लिए मुझे प्रेशर कितना चाहिए? तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Now same thing, 6 of the carbon dioxide which is in a gaseous state. यहाँ पे गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्वियस है, आप इसको रिमूव करिए, उसको गैसियस फॉर्म में लिखिए. 12 of the H2O that is in a liquid state. ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे टेक प्लेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कहाँ पे होगा? तो क्लोरोफिल के अंदर होगा. जो फॉर्म करेगा दैट इज ए ग्लूकोज. सो C6H12 एंड O6 इट इज़ इन अ डिजॉल्व फॉर्म. तो इसको क्या लिखूंगा मैं? ग्लूकोज. अब डिजॉल्व फॉर्म में एक्वियस क्यों लिखा? क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसके पैरेलल वाटर भी लिबरेट हो रहा है, 6 of H2O. सो दिस इज इन अ एक्वियस स्टेट एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट इज़ गोइंग टू लिबरेट 6 of O2. यहाँ पे भी स्टेट गलत लिखा गया, यू हैव टू राइट इट डाउन G over here. It is in a gaseous form. So using these steps, can you balance equation 1.2 given in the text earlier? तो 1.2 के अंदर हमको कौन सा रिएक्शन दिया गया था? Let us search that particular things. That is a जिंक रिलेवेंट. तो मैंने यही रिएक्शन आपको ऑलरेडी बैलेंस करके बता चुका हूँ मैं आपको. क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर ZnSO4 all are in a balance form, so there is no need to do any balancing. Just here to mention the state of that particular things. Okay, now based on this we are going to see types of the chemical reaction in our next session. But before that, in a page number 6 some reaction has been given, 1, 2 and 3, which is a very important reaction. Here you have to recollect your knowledge which you had learned इन स्टैंडर्ड 9th pertaining to the element, और उसके कंपाउंड कैसे होते हैं उसके पे से है. सो ये थोड़ा याद रखिए. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस प्लीज़ लेट मी नो, आई विल इन्फॉर्म यू. माई मोबाइल नंबर इज 9638229462. सो होप you are able to understand how to balance the reaction. Along with that, I had already taught you how to write down that particular things along with a condition. तो कंडीशन एरो के ऊपर लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, और 3 कंडीशन जो है
temperature, pressure and catalyst you have to write down on arrow. Thank you very much for being with us. Remaining part of this chapter we are going to learn in our next session. Thank you very much.